Okay, so we are continuing with the questions, right? Now, shall I ask you the mixed questions, or I shall ask you the chapter wise? वही questions है, sample means 17. चलो ये question ही सुनो सारे लोग. Regulatory proteins are the accessory proteins that interact with RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statements is correct about regulatory protein? Question समझ आया? क्या दोबारा बोलूं? दोबारा बोल रही हूँ question. Listen to this. Regulatory proteins are the accessory proteins that interact with RNA polymerase and affect its role in transcription. ठीक है? Which of the following statements is correct about regulatory protein? They only increase expression. Yes or no? हाँ या ना बोलो. हाँ जी शिवम, मनकीरत, मयंक. हाँ जी, can you say something on this? They only increase expression. Yes or no? No. सिर्फ increasing में नहीं आएगा. They only decrease expression. No again. They interact with RNA polymerase but do not affect the expression. अगर वो polymerase से interact करेगा तो effect भी तो करेगा अपना expression को. They can act both as activator and a receptor. Sorry, repressor. Yes. ठीक है? बस statement correct about the regulatory protein. ठीक है? They help in regulation. Regulation word का मतलब ही होता है on and off. Regulation, regulatory proteins. ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि आपने जब भी रेगुलेट करना है किसी प्रोसेस को तो वो कैसे करना है. ठीक है जी, डन. ओके, चलें ask other questions from here only. Okay, tomorrow you people are also having your test. Tomorrow is Friday. मैंने अनाउंस किया था अब आपको. 5th and 6th full genetics unit 2 both the chapters, chapter 5 and 6. सभी बच्चे आएंगे टेस्ट देने, मुझे क्या पता. Chapter 5 and 6 together, and that is tomorrow. You are having the test. Silent. Tomorrow, that is Friday, and that is 22:10. Okay, so tomorrow you are having the again MCQ test, that from the 2 chapters 5 and 6, and that is tomorrow in your class. Do come for the offline classes. Done. आपने दिया था, इन लोगों ने तो नहीं दिया. चलो अच्छा, लेसन पेपर याद रहेगा. हाँ जी, चलो. Which chromosome has the last, which was the last human chromosome to be completely sequenced? Chromosome 1, chromosome 11, chromosome 21, and chromosome X. Last one. Why one? Because it was having the huge number of the base pairs in it. ठीक है? Genes उसमें बहुत सारी थी, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई करते सबसे ज्यादा समय लगा. 11 हुए हैं. कितने बजे बेल होनी है? 25 पे 11 हुए हैं. Which of the following are the functions of RNA? It is the carrier of genetic information from DNA to ribosome, synthesizing polypeptides. Yes or no? Which of the following are the functions of RNA? RNA का function क्या है? It is carrier of genetic information from DNA to ribosomes, synthesizing polypeptides. सही है. It carries amino acid to ribosomes. tRNA लेके जाता है amino acids. ठीक है? इसने function of RNA बोला है, तो RNA in general सारे ही लेंगे आप. mRNA, tRNA, rRNA सारे. Third is it is a constituent component of ribosomes. rRNA. So all of these. ठीक है? हाँ जी, next question. While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found. 5386 total were found, out of which the proportion of different bases were adenine 29%, adenine was 29%, guanine is 17%, cytosine is 32%,
and thymine is 17% again. So now the question is, considering the Shargaf rule, it can be concluded that, can you see this whole? हाँ जी, अब इसमें conclusion क्या लगा सकते हैं आप? First is, it is a double stranded circular DNA. Yes or no? नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे A जो है वो T के बराबर होनी चाहिए थी, वो गलत है। ठीक है, A और T बराबर होने चाहिए थे, G और C बराबर होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे G और T बराबर है, ये गलत हो गया, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। और सेकेंड इज, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड में तो कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। चलो, वी कैन टेक दिस ऑन वन साइड। देन सी इज, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, लीनियर हो या सर्कुलर, डीएनए में रूल फॉलो करेगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड में। Then no conclusion can be drawn. That is also wrong. So B is an answer, single stranded DNA. The almost same questions are there in all the books. Questions ही खत्म हो गए इनके पास. Okay, next is, if Michelson and Stahl's experiment is continued for 4 generations. 4 generations के लिए continue किया है, ठीक है. Then in bacteria, the ratio of heavy to light to, sorry, heavy to hybrid to light, बताओ कितना रेशियो होगा? 0.017. क्यों ऐसा? 4 जनरेशंस बनाई हैं। 4 जनरेशंस मींस पहली जनरेशन में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 8 और चौथी में 16, ठीक है, 16 टोटल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, और ये तो खत्म ही हो जाते हैं फर्स्ट में ही, ठीक है, तो ये तो 0 हो गए। अब हाइब्रिड हमेशा 2 रहने हैं, ठीक है, तो 16 में से हाइब्रिड 2 ये हैं, और लाइट कितने बचे? 14, ठीक है। अगर आपको रेशियो होता 0 to 14 तो वो जाता, लेकिन यहाँ पे रेशियो है 0.17, तो हम इसको लोअर में जा सकते हैं 0.17, ठीक है जी, क्लियर? आई होप अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। If the sequence of nitrogenous bases of the coding strand of DNA in the transcriptional unit, ये sequence दिया है ATG AATG, ठीक है, the sequence of the bases in its RNA transcript would be, RNA transcript है A, U होता है, हाँ, AUG बनाओ. This is the nitrogen base of the coding strand of the DNA in the transcription unit. Coding nitrogen bases of the coding strand of the DNA in the transcription unit. कौन सा स्ट्रैंड अपना ऑपोजिट बनाता है? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है टेम्पलेट, एक होता है कोडिंग। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करेगा आरएनए? टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, कोडिंग सेम बनाता है, और ये आपको सीक्वेंस किसका दिया है? कोडिंग का, तो सेम बनाएगा, फिर उल्टा क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर कंफ्यूज क्यों? फिर ये पहले वाला आंसर हमारा आएगा, दैट इज AUG AAUG, सिर्फ T को रिप्लेस करना है U से, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड लिखा है उन्होंने ऊपर। If the base sequence of a codon in mRNA is 5' AUG 3', this is the base sequence. The sequence of the tRNA pairing with it must be, क्या होना चाहिए? tRNA जो इसके साथ पेयर करेगा, हाँ हाँ, ये mRNA का सीक्वेंस है, कोडोन है, सीक्वेंस ऑफ tRNA, ये mRNA का है, आपको tRNA का ढूंढना है। ऑप्शंस आर UAC, CAU, AUG एंड GUA। वो सेम ही है, सारे 5 to 3 हैं। क्यों? A किससे बाइंड करता है? T से,
टी जो है वो यहाँ पे है नहीं, आरएनए है, तो यू, ए यू करेगा ए से और जी करेगा सी से, यूएसी। देखने में बस बायो के क्वेश्चंस औखे लगेंगे, करने में बड़े सौखे हैं। बेसिकली क्या है, देखो अब आपको दो तरह के क्वेश्चंस आने बेटा, वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दो तरह के क्वेश्चंस आने, एक तो आपको सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने, थ्योरी जो लिखी हुई आती है, क्वेश्चन लिखा है नीचे, 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 4 वर्ड्स लिखे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये सीधे क्वेश्चंस है। दूसरे आपको जो आने हैं वो है कंसेप्ट बेस्ड, है ना। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिसमें आपको लॉजिक्स पता हो कि अगर हम ये कह रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चंस क्या हैं, ये शेरगफ रूल वाला, ये रेशियो प्रोपोर्शंस वाला, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रिंसिपल्स वाले में चैप्टर में भी है, ऐसे ही ये वाला सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है, ये सीक्वेंसिंग आ गया, है ना। तो ये सारे क्या है, ये कंसेप्ट बेस्ड। अगर आप इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो, थ्योरी आपकी ऑलरेडी तैयार है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप एनसीईआरटी आप लोग को पूरी आती है, ठीक है। आप लोगों ने पेपर से पहले भी अपनी लास्ट मतलब डे बिफोर योर एग्जाम तक एनसीईआरटी ही पढ़नी है जरूर, ठीक है। डू नॉट रीड योर टेक्स्ट फ्रॉम एनी अदर बुक। रीड मीन्स यू हैव टू थिंक ऑन द पॉइंट व्हेनेवर दे आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, ठीक है। कुछ एक चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, कैसे, जो हम लोगों ने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा था, आई होप मॉलिक्यूलर बेसिस वाले में ही, जहां पे वो आपको दिया हुआ है न्यूक्लियोसोम एंड ऑल का कंसेप्ट दिया हुआ। अब उसी चैप्टर में आपको एक कॉलम मैंने दिखाया था, एक पैराग्राफ, उसमें नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स पर ऑर्गेनिज्म वो बताए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। अब वो वाले डाटा जो हैं वो क्रैमिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ या कंसेप्ट बेस के साथ कहीं रिलेट नहीं करते, ठीक है। बुक में जहां पे ऐसी चीजें हैं, साइंटिस्ट लोगों के नाम, ईयर्स हो गए, ठीक है, एंड सेकेंडली ये ऐसे डाटास लेके क्रोमोसोम 1 के अंदर कितने जीन्स हैं, यहाँ क्रोमोसोम वाई के अंदर कितने हैं, है ना। तो ये सारे जो डाटास गिवन है वो सारे आपको क्रैम करने पड़ेंगे, otherwise your two things are very perfectly done. And now because you people are also giving me the answers, I am comfortable that you will be getting good marks, ठीक है। I hope you will be getting very good marks. Still you need to get the full sample paper solved time and again, ठीक है। जो मर्जी कर लो, मेरे ले जाओ, अगर लेके जाने, मेरे पास बहुत सारे बड़े हैं, ले लो, यही दोनों ले जाओ, ये दोनों मुझे वापस दे देना बस। हाँ जी, आप लोग सैम्पल पेपर्स की बुक्स जो हैं मेरे पास, ये 2 फिलहाल, ये वाली और एक 2 और पड़ी होंगी, 2-3 हाँ पड़ी हैं। तो आप अपनी वो बुक्स जो हैं वो लेके जा सकते हैं मेरे से, उनको पढ़ के अगले दिन जरूर लेके आइएगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू अगेन कम विद द क्वेश्चंस। हाँ ठीक है। सो ये बुक्स में से पता क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट लिसन। आप लोगों ने एक पहले चैप्टर पढ़ना है, ये तो इसकी है समृद्धि। पहले आपने चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी से रीड किया, हर कंसेप्ट को समझने वाला रीड किया, ठीक है। जो थ्योरेटिकल है वो तो पढ़ते ही याद हो जाते हैं, जिनको दिमाग चलाना पड़ता है, जैसे ये कैलकुलेशंस है, उनमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। जब ये तैयार हो गया, उसी के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस बीच बीच में से कर लो सारे। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जितने आपके सैंपल पेपर बुकलेट्स मिलेंगे ना, स्टार्टिंग वाले सारे बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आसान, लेकिन वो थोड़े धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, मुश्किल होते रहते, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे से शुरू करो एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जस्ट सॉल्व। आप कोई एक भी बुक पूरी से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इनसे इजी मिलेंगे, इससे मुश्किल नहीं मिलेंगे। ब्लूप्रिंट वाले ये जो क्या है, माइंड मैपिंग, क्या है बुक का नाम, नहीं ये दिनेश है, नहीं ब्लूप्रिंट की ये पब्लिशर्स, ब्लूप्रिंट पब्लिशर्स की ही है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, अदरवाइज इट वाज, नहीं समाधान तो अब आई है ना, वही है, ब्लूप्रिंट पब्लिशर्स की ही दूसरी है। हाँ, मास्टरमाइंड जो बुक है, हाँ वो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस दे रही है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस मिले जुले हैं। अब आपके भी ये वाले भी सेम ही जा रहे हैं, अरिहंत के भी, ठीक है। सो एक कोई भी किताब, कोई भी एक किताब के अपने सारे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस सब कुछ कर लेना है अच्छे से। When you are done with it, then you are prepared for the chapter, ठीक है। मास्टरमाइंड आज मेरे पास नहीं है, पर 2 और पढ़ी हैं, वो ले लेना, ठीक है। सो आप लोग बुक्स जो भी
एक एक बुक है बेटा, वो हमारे पास आ गई है ना, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग इट टू यू. दिस इज द मास्टरमाइंड एंड व्हिच आई हैव, दैट इज द सेम. इसके नाम चेंज कर दिया, बस समाधान बना दिया, उसका नाम भी यही है, वो मास्टरमाइंड है. सेम क्वेश्चंस यही वाले उसमें भी, हार्डली 2-4 ज्यादा ये वाले. हाँ वो ले आना आप. जो जो क्वेश्चंस बच्चे जहां जहां से भी पढ़ रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आओ, अच्छे क्वेश्चंस लेके आओ. हाँ. एक मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, पर वो आपका पेपर हो जाए प्री बोर्ड का, उसके बाद मैं आपको वो पीडीएफ दूंगी. ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा ही हाई लेवल की है. ठीक है, तो वो, हाँ तो वो थोड़ी मैं आपको बाद में दूंगी पीडीएफ. जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दैट. ठीक है, आफ्टर योर प्री बोर्ड्स आई विल गिव यू दैट. Right, and then you solve those questions. They are also nearly 400 to 500 questions in that PDF. ठीक है, तो वो आप सारे चैप्टर्स के कर लेंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल. ठीक है, मतलब 200-400 क्वेश्चन तो हैं कम से कम उसमें. टेस्ट मैंने आपको असाइनमेंट भेजनी है, जो आपका मेरिटोरियस ग्रुप है. मेरिटोरियस में एक ही आई है अभी, पिछली बार वाली आई तो है, अपने ग्रुप में डाली है शिवम ने. हाँ, तो अब सेकंड वाली कल जाएगी ना, तो कल वाली आपकी आ जाएगी असाइनमेंट. ठीक है, असाइनमेंट्स जो है बेटा वो अच्छे से सॉल्व करते रहो, और क्वेश्चन सारों में सेम सेम है. ठीक है, चलो लिसन टू द क्वेश्चन. अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाना, आसान भी पढ़ने हैं. ठीक है, हाँ नहीं होते. सीबीएसई जो है ना, दैट ऑलवेज फ्रेम्स द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन आसान, एवरेज एंड मुश्किल. ठीक है, सो आसान भी करने हमने, ये ना हो कि हम सिर्फ ऐसे मुश्किल वालों के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं और आसान वालों में नंबर गवा के आ रहे हैं. ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो द कंसेप्ट ऑफ द 60 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50 आउट ऑफ इट. है ना, ये बोर्ड्स की कंडीशंस जो है, 60 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 50 करने होते हैं. ठीक है, जेड़े मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारा लॉस हो सकता है. 60 कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप बहुत श्योर हो, अगर आपको लगता है कि 60 on 60 आपके क्लियर है, उसमें क्या होगा, उन्होंने फर्स्ट 50 चेक करने हैं सिर्फ. ठीक है, फर्स्ट 50 चेक करने हैं, और उस फर्स्ट 50 में अगर आपके गलत भी आ गए तो वो भी काउंटेड है. समझ गए? हाँ 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 हाँ. नहीं बोर्ड्स का हमारा तो वही चलेगा ना, 50 नंबर वाला, 50 क्वेश्चंस वाला. 35 मार्क्स 35 ही रहने हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी 0.7 आपका. हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी नहीं थी. 0.7 नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीबीएसई को. नो नेगेटिव मार्क. ओके, कम बैक टू द क्वेश्चंस. ये तो बहुत पूछ चुकी हूँ मैं, ये भी अच्छी है. मैं दूसरे चैप्टर्स में से पूछूं. यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं अरिहंत में. अच्छा, ये सारी सिलेबस की है, टर्म 1 टर्म 2. ओ चलो, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.